Well, this was the political fight taken up by several against the latest postponement that's been announced by the Education Ministry. In the latest, as far as the NEET UG retest is concerned, remember the retest took place today. The exams, in fact, began at 2 p.m. We're learning out of the 1,563 students eligible for the retest, 813 have appeared for the examination, for the retest. Let me go across to Shireen, my colleague, joining us with more details. 813 appearing for the retest. This option was extended to as many as 1,563 students on the directions of the top court and the proposal that came in from the centre. What more are we learning? How were these exams conducted? They began at 2 p.m. This was just one aspect of the larger problems that were raised by students as far as the NEET UG examination is concerned, that of the grace marks. What are we to make of this development that's taken place today, Shireen? Well, today the exam, in fact, of these 563 students, which were scheduled to take place today, happened between 2 p.m. to 5:20 p.m. today, and after which, in total, we are seeing that around 813 students, which is approximately 52% out of these 1563 students, appeared for the exam. A total of 750 students have, in fact, were absent from the students, because remember, an option was given to them whether they want to take this examination or not. If they are taking the examination, then the result, which is going to be out on 30th, that mark will be calculated for each of these candidates. But if they are not appearing, then the original mark, because the grace mark now stands withdrawn, they will go back to their original marking. So the test went on today, and there were NTA officials who were in these centers. There were around 7 centers across the country, and in these 7 centers, the NTA officials were also present in each of these centers, and it went smoothly, is what the sources within the NTA have been saying. And 30th of June is when the results will be out, and accordingly, the counselling session will begin on July. Okay. All right. So rest goes as per plan. This will follow the counselling session, and before that will come the result of those who've appeared for this examination and learning. The number stands at 813 of the total 1,563 that were extended this option. Many thanks for that, Shireen. A host of reactions coming in. Remember, like I said, the students' community up in arms against the constant postponement and cancellation that's taken place, not just with regards to NEET examinations, but also the NET exam. Listen in. हमारा आज संडे को आज के दिन हमारा नीट पीजी का पेपर होने वाला था, लेकिन सरकार कुछ इनकी इनकैपेबिलिटीज़ और सरकार की कमज़ोरी की वजह से पेपर नहीं हो पाया। पता नहीं सरकार बच्चों से क्या चाहती है, सरकार बच्चों के साथ ऐसा क्या करना चाहती है जिससे बच्चे पूरे परेशान रहें, बच्चे स्ट्रेस में रहें। सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। एक तरफ एम्स वाले हैं जो साल में 2 बार पेपर कराते हैं टाइम पे, 2 बार काउंसलिंग कराते हैं टाइम पे और 2 बार बच्चों को एडमिशन देते हैं, और एक तरफ ये NBMS बोर्ड वाले हैं जिनसे कुछ भी नहीं हुआ जा रहा है। हर महीने आप देख रहे हैं, रोज पहले कहते हैं कि जनवरी में, फिर कहते हैं मार्च में, फिर जुलाई में, फिर कहते हैं जून में, और फिर लास्ट में आए एक दिन बचता है और कहते हैं कि हम तो अब पेपर ले ही नहीं रहे, हम जब नेक्स्ट डेट होगी तब लेंगे। तो मतलब आप लोगों ने बच्चों का जो फ्यूचर है, बच्चों की जो लाइफ है, बच्चों का जो पढ़ाई है, उसको तो आपने मजाक बना दिया है। मैं अब पूरी PSC और CSC का जो काम है वो छोड़ के यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आया था। हम जैसे ही पहुँचे, हमने रूम लिए, होटल्स वगैरह लिए हमारे साथियों ने। जब उनको रात को पता लगा तो उनका भी मन ख़राब हो गया कि वो इतनी दूर से पूरी PSC को छोड़ के आए हैं, वहाँ पर जो सेवाएं बाधित हो रही है उसको छोड़ कर आए। तो ये सरकार को एक दिन केवल 12 घंटे के शॉर्ट नोटिस में, कहीं को तो पता ही नहीं चला। आप कैसे कर सकते हो? हम सब जानते हैं कि देश के अलग अलग इलाकों से लोग जाते हैं दूसरी जगह एग्ज़ाम देने, छात्र जाते हैं परीक्षा देने के लिए, लेकिन ये सरकार इतनी विफल हो चुकी है कि हर जगह वो छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर, छात्रों और युवाओं के सवालों पर विफल दिखाई दे रही है। हमने देखा कि नीट PG से लेकर UGC नेट, उसके बाद CSIR नेट, और उसके साथ ही साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि बिहार टेट, जहाँ जहाँ NDA की गवर्नमेंट है वहाँ ये स्कैम आ रहे हैं, खुल कर आ रहे हैं, और एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जा रहा है, छात्रों को परेशान किया जा रहा है। और यही NDA की सरकार है जो लगातार छात्रों और युवाओं के पीठ पर छुरा घोंप रही है। 8 बजे सुबह रिपोर्टिंग टाइम था, 9 से 12:30 बजे का टाइमिंग था, और वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। उस प्रेस रिलीज़ में
उन्होंने मेंशन किया है कि इसकी इंटीग्रिटी को, एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी को और सेंसिटिविटी को देखते हुए एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाता है। नीट पीजी जो कि डॉक्टर्स का एग्ज़ाम है, 2 लाख MBBS डॉक्टर्स इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। नीट पीजी को इतना बड़ा एग्ज़ाम है ये। 10 घंटे पहले लोग कहाँ सेंटर से 500 किलोमीटर कोई कहाँ से दूर से आया हुआ है, जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। ये उनकी हेल्थ के साथ मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है ये सरकार के द्वारा। नीट पीजी का एग्जाम भी सरकार ने, डिपार्टमेंट ने पोस्टपोन कर दिया है। अगर ये एग्जाम सरकार 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले पोस्टपोन कर देती तो आज छात्र जो फंसे हुए हैं वो इसमें नहीं फंसते। छात्रों के फोन आने शुरू हो गए हैं कि हम दिल्ली से दूर आगरा फंसे हुए हैं, जो यूपी का छात्र है वो किसी और जगह दूर फंसा हुआ है, छात्र घबराए हुए हैं। तो मेरी सरकार से मांग है कि शिक्षा के साथ ऐसे भद्दे मजाक ना करें और जो एनटीए के भी डायरेक्टर को रिप्लेस कराएं। खाली रिप्लेस करना एक सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कि एनटीए को तुरंत बैन करा जाए और साथ के साथ नीट की परीक्षा दोबारा कराई जाए। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा जिस प्रकार से नीट पीजी परीक्षा रद्द करने का निर्णय हुआ है, इस निर्णय से कहीं न कहीं छात्रों के मन में एक असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार का कोई इनपुट नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, भारत की स्वास्थ्य मंत्रालय के पास यदि कोई आशंका थी तो उस आशंका को और पूरी गतिविधि को और पूरी अपनी कार्रवाई को विद्यार्थियों के सामने लाना चाहिए था। आज विद्यार्थियों के मन में सवाल ये है कि परीक्षाएं यदि रद्द हो रही है तो उसके कारण क्या है, उसको सुस्पष्ट करने की आवश्यकता है। Hey, thank you for watching this on CNBC TV 18. Hope you liked it. For more such interesting news and updates, follow CNBC TV 18 on all the social media platforms.